Let us begin with day 2 and day 0 पे we did basic hello world program. Day 1 पे we talked about a little bit on data types and now we move one step ahead when we'll be talking about operators. तो operators क्या हैं? Operators are those basic elements जिससे आप variables के ऊपर operate कर सकते हो. Whether you want to perform arithmetic operations on them, whether you want to compare them, whether you want to perform logical operations on them, all of these are possible by using some or the other operator. तो ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर कैन बी अंडरस्टूड लाइक एज अ टूल. ठीक है, आपने डेटा लिया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया. नाउ टू मैनिपुलेट दैट डेटा you would require some or the other operator. ठीक है, so let us quickly first scan through all the operators in C and then we'll go on to the actual question. तो there are a lot of types of operators. There is arithmetic operator. सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं. There is arithmetic. अब देखो, a lot of programming languages are so easy because उनके जो elements होते हैं उसको अगर आप translate करोगे अपने mother tongue में तो everything will make sense. For example, arithmetic operator क्या करेगा? It will help you perform arithmetic operations. The first operator is plus. So if you say a plus b, it will return the addition of a and b. Then there is minus. So if you say a minus b, it will subtract b from a. एक चीज याद रखना, a minus b is not equal to b minus a. ठीक है, a minus b and b minus a are not same unless and until a and b are both zero या a and b are both equal. ठीक है, then there is this star. Star basically, if you say a star b, it is simply going to give you the product, multiplication. Then there is forward slash जिससे आप division करते हो. तो if I say a slash forward slash b, it simply tells me that you divide a by b. ठीक है, very basic stuff. अच्छा, बट इसमें एक चीज ध्यान देना ये पड़ता है कि this a slash b, a divide by b, it will truncate. ठीक है, it will truncate the decimal points. मतलब क्या है कि if a and b are both integers and if you are dividing 3 by 2, 3 divided by 2 अगर technically देखेंगे तो आंसर should be what? 3 divided by 2 अगर करोगे तो आंसर should be 1.5. हाँ, but when you use 3 forward slash 2, the answer that you will get is only 1. So what does it do? वो डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी सारी चीजें हैं उसको वो आगे ट्रंकेट कर देता है. तो हाउ टू सॉल्व दैट? देयर आर टू पॉसिबल वेज. सबसे पहले a या फिर b, दोनों में से किसी एक को आप फ्लोट में लिख लो. इधर a और b, या तो a को फ्लोट में लिखो या b को फ्लोट में लिखो या दोनों को फ्लोट में लिखो. तब क्या होगा? द डेसिमल पॉइंट के आगे का डिजिट्स विल नॉट गेट ट्रंकेटेड. या दूसरा चॉइस ये है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग. ठीक है, टाइप कास्टिंग मतलब क्या? आपने a को तो इंटीजर डिक्लेयर किया है, b को भी इंटीजर डिक्लेयर किया है, लेकिन इनका सम, ठीक है, उसको आपने डिक्लेयर किया फ्लोट में, जिसमें आप डिवीजन में क्या स्टोर करने वाले हो? a डिवाइडेड बाय b. सो व्हेन यू राइट div इज इक्वल टू a बाय b, व्हाट यू कैन डू इज सी a इज एन इंटीजर, b इज एन इंटीजर. मान लो a की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू है अगेन 2. सो इफ a डिवाइडेड बाय b अगर आप करते हो तो इसका आंसर आता है 1.5, बट सिंस इट ट्रंकेट्स एवरीथिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो आंसर क्या स्टोर होगा div के अंदर? द आंसर स्टोर वुड बी 1.000000. व्हाई इज दिस हैपनिंग? देखो, जो डिवीजन है वो तो फ्लोट है, तो ऑब्वियसली वो उसमें तो डेसिमल पॉइंट रहेगा, लेकिन जो वैल्यू स्टोर हो रही है दैट विल बी ओनली 1. वो 1.5 स्टोर नहीं करेगा. तो उससे बचने का क्या तरीका है? इधर यू डिक्लेयर a and b as float और यू टाइपकास्ट इट. टाइपकास्ट कैसे करते हैं? तो ब्रैकेट में आप वो डेटा टाइप लिखते हो जिस डेटा टाइप में आपको उसको टाइप कास्ट करना है. ठीक है, एवरीबडी हैज वॉच्ड दीज एवेंजर्स मूवीज. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? जब थोर का फर्स्ट हैमर इज नॉट विथ हिम, ही गोज टू कास्ट अनदर हैमर. सो कास्टिंग मतलब उसको कन्वर्ट करना है, नया बनाना, समझ लो. So what is happening? You have an integer, but you are actually converting it into some other data type. Here we want to convert it into float. So how will we write it? We'll say float, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, and then we'll say a divided by b.
सो व्हाट इज हैपनिंग, ए को वो टाइपकास्ट कर रहा है फ्लोट में. सो ए की जो वैल्यू है, ए ऑब्वियसली इज एन इंटीजर, बट ए की जो वैल्यू एक्सेस होगी वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी. या अब तो आप ए को टाइपकास्ट कर दो फ्लोट में, या तो आप ऐसा कर दो, ए डिवाइडेड बाय फ्लोट ऑफ बी. तो इससे क्या होगा, डेसिमल डिजिट्स जो है वो ट्रंकेट नहीं होंगे. इज दिस पार्ट क्लियर? आंसर इन द चैट, यस नो. ठीक है, तो प्लस adds two values, minus subtracts two values, multiplication gives you the product, division gives you the division, the quotient. Now there is one thing called as the modulo operator. So if you say a modulo b, वो क्या रिटर्न करेगा, it will return you the remainder when a is divided by b. ठीक है, it will return you that when a is divided by b. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 3 mod 2, तो वो क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1. तो अब दिस 1 इज नॉट फर्दर डिविजिबल बाय दिस 2, तो वो क्या करेगा, इट विल सिंपली रिटर्न दिस वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू. तो 3 mod 2 का वैल्यू आता है 1. अगर आप 2 mod 3 करने जाओगे तो आंसर वुड बी व्हाट, 2. क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को डिवाइड करने जाओ 3 से, तो 3 zeros are 0, like 2 is not divisible by 3, so the entire remainder is 2 over here. Are you getting the use of modulo operator? Answer in the chat. ठीक है, it returns the remainder. अच्छा, एक चीज जो हमेशा याद रखना है कि मॉड्यूलो के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो भी आप ऑपरेंड्स लिख रहे हो, these should be integers only. ठीक है, these should be integers only. अगर आप ऐसे लिखोगे, just let me make some space. अगर आप लिखते हो 2.3 mod 4, तो फिर ये एरर देगा. वाई? बिकॉज 2.3 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. उसके लेफ्ट साइड पे भी इंटीजर चाहिए, राइट साइड पे भी इंटीजर चाहिए. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रिलेशनल ऑपरेटर्स. अब नाम से ही पता चलता है, ठीक है, रिलेशनल, उसके अंदर है रिलेशन. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करेंगे, इट विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. So what is happening? The first is equal to. अगर आप लिखते हो a equal to b, तो वो क्या करता है, a की वैल्यू और b की वैल्यू को कंपेयर करता है. इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंपैरिजन ऑपरेटर. ठीक है, कंपैरिजन क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड दोनों के वैल्यूज को कंपेयर करता है. सो अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल है, कंपैरिजन सही है, तो वो 1 रिटर्न करता है. एंड अगर कंपैरिजन गलत हो गई तो इट विल रिटर्न 0. फॉर एग्जाम्पल अगर a की वैल्यू है 5 एंड b की वैल्यू है 10, और अगर मैंने ये बोला a इक्वल टू b, सो दिस कंपैरिजन इज रॉन्ग बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b. ठीक है, तो क्या करेगा, दिस कंपैरिजन इज फॉल्स. तो इसका आंसर जो आएगा, इसका रिटर्न जो करेगा ये, दैट वुड बी 0. आर यू गेटिंग दिस? लेट अस क्विकली राइट इट आउट एंड सी इनसाइड ऑफ आवर कंपाइलर. अगर मान लो मैंने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 10 and b is equal to 20. Now मैं क्या कर रहा हूं, I am printing the value of a equal to b. ठीक है, अगर मैंने ये परफॉर्म किया तो सी a equal to b क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा, 10 को और 20 को. Are they equal? No, they are not equal. Therefore, it will return 0. So you can see the output is 0. No. 0 कहाँ है? हाँ यार, इट इज. तो जैसे इक्वल टू कंपेयर के क्या ये इक्वल है या नहीं, वैसे तो नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू. सो इफ यू से ए नॉट इक्वल टू बी, इट चेक्स इफ दे आर नॉट इक्वल. तो इफ दे आर नॉट इक्वल मतलब कंपैरिजन सक्सेसफुल है, मतलब दे विल रिटर्न 1. ठीक है, एंड अगर इक्वल हो गए, मतलब कंपैरिजन नॉट इक्वल टू चेक करना था बट वो इक्वल निकल गए, तो आंसर वुड बी, द रिटर्न वैल्यू वुड बी 0. सो सिंस हियर a एंड b आर नॉट इक्वल, एंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इक्वल टू, सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज चेकिंग इफ a इज नॉट इक्वल टू b. तो a 10 है, b 20 है, दे आर नॉट इक्वल, एंड देयरफॉर दिस कंपैरिजन विल रिटर्न अ वैल्यू 1, बिकॉज हमें चेक करना था कि क्या ये दोनों नॉट इक्वल हैं, एंड यस दे आर नॉट इक्वल. So if we run this, the answer that you get is 1.
डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये चीज समझ में आया? आंसर इन हाँ, why 1 or 0 is returned? C. In C programming, 0 stands for false and any non-zero number stands for true. ठीक है, तो अगर आपने बोला 0, it means it is false and any number which is not equal to 0 is true. तो हम ट्रू के लिए जनरली 1 से एसोसिएट करते हैं और फॉल्स से जनरली 0 से एसोसिएट करते हैं. तो अगर मैंने बोला है a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 एंड अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि a नॉट इक्वल टू b है क्या, तो सी 10 एंड 20 आर नॉट इक्वल, therefore this value is actually a false value. तो कंप्यूटर को कैसा पता चलेगा कि ये फॉल्स वैल्यू है? सो कंप्यूटर रिटर्न्स 0. व्हाई डज नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि कंप्यूटर 0 क्यों रिटर्न कर रहा है? द थिंग इज, अगर आपको डिसीजंस लेने हैं, अगर मैंने ऐसा लिखा इफ a नॉट इक्वल टू b देन यू डू दिस वर्क, उस समय अगर a नॉट इक्वल टू b रहेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगा, तो व्हाट विल द कंपाइलर सी? वो चेक करेगा कि क्या a नॉट इक्वल टू b है. द रिटर्न्ड वैल्यू इफ इट इज 1, मतलब इफ के अंदर 1, इफ के अंदर ट्रू, देन इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. सो ये जो 0 और 1 रिटर्न हो रहे हैं, this 0 and 1 will be used by something else if we declare it like that. Are you getting this? गौरव, ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे if a इक्वल टू b, अगर a और b दोनों इक्वल हो जाएं तो ये चीजें करो, लेकिन अगर a की वैल्यू 10 है एंड b की वैल्यू 20 है, तो a इक्वल टू b का आउटपुट क्या आएगा? 20 इज नॉट इक्वल टू 10, therefore this value will be 0. तो हुआ क्या एग्जैक्टली? इफ के अंदर गया 0. तो अभी इफ कैसे काम करता है? अगर इफ के अंदर फॉल्स वैल्यू है, इफ के अंदर 0 वैल्यू है, देन इट विल नॉट एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट. सो द कंपाइलर अंडरस्टैंड्स वेदर इट वांट्स टू execute it or not by taking 0 and 1. Gaurav, are you getting this? ठीक है, हाँ, 0 and 1 are like boolean values. yes, बिल्कुल. ट्रू फॉल्स समझ लो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1. तो अगर कंप्यूटर को बोलना है कि ये ट्रू है, यू विल सिंपली से 1. कंप्यूटर को बोलना है ये फॉल्स है, इट विल सिंपली से 0. ठीक है, तो अभी तक क्या देखा? इक्वल टू दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. रिटर्न 1 इफ दे आर इक्वल, रिटर्न 0 इफ दे आर नॉट इक्वल. नॉट इक्वल टू क्या करता है? दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा. रिटर्न 1 इफ दे आर नॉट इक्वल, रिटर्न 0 इफ दे आर इक्वल. नेक्स्ट 4 देख लो. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ठीक है, a ग्रेटर देन b अगर हुआ तो फिर इट विल रिटर्न 1 इफ a इज ग्रेटर देन b. ठीक है, एंड सिमिलरली इट विल रिटर्न 0 इफ a इज लेस देन b. सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूं a लेस देन b, तो अगर ये a लेस देन b हुआ तो इट विल रिटर्न 1, else it will return 0. Are you all getting this? Similarly, this is greater than equal to, this is less than equal to. Let us just take an example to see what is happening. समझो a की वैल्यू 10 है एंड b की वैल्यू 20 है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a लेस देन b. तो अब देखो, a is 10, b is 20, a is less than 20, therefore this will return a value 1. And if you print that value, you see that the value that is returned is 1 here. ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि a is greater than b, then this becomes false, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, a greater than b is false, so the returned value that is printing over here should be 0. So if you run this, ये देखो, the value printed is 0. Similarly अगर मैं बोल दूं greater than equal to b, तो नहीं, अभी भी greater than equal to नहीं है, a is not greater than equal to b, therefore the returned value will be obviously 0. यहाँ पे 0 इज द आउटपुट. बट अगर मैं कहूँ a लेस देन इक्वल टू b एंड अगर मैं a और b दोनों की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ, सो व्हाट विल हैपन? इट इज नॉट लेस देन, लेकिन इट इज इक्वल ना, a एंड b आर इक्वल, सो द वैल्यू एंड विल बी व्हिच विल बी आउटपुटेड वाज विल बी 1 यहाँ पे. ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आया? दे विल सिंपली गिव यू द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये चीज क्लियर है? आंसर इन द चैट. Why greater than equal to didn't work? It worked. No, see, a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू मैंने तभी 20 रखी थी, एंड अगर मैं बोलता हूँ a greater than equal to b, तो इस 10 greater than or equal to 20? No, वो बड़ा भी नहीं है और equal to भी नहीं है.
जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहा था ना, तब इट वॉज 20 ओवर हियर। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ एंड अगर मैं अभी इसको ये करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑब्वियसली आंसर 1 आएगा क्योंकि ए एंड बी आर बोथ आर इक्वल। ये देखो, जब मैं पहले ग्रेटर देन इक्वल टू कर रहा था तब b की वैल्यू वाज 20 इनिशियली, आई चेंज्ड इट टू 10 जस्ट टू वेरी विद द वेरिएबल। ठीक है, तो दीज आर ऑल रिलेशनल। तो अभी तक क्या सीखा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। ठीक है, दीज आर व्हाट? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्यों? क्योंकि ये जो है बाइनरी, बाई मीन्स टू। ठीक है, तो बाइनरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ए एंड बी यू नीड टू ऑपरेंड्स टू वर्क ऑन इफ यू हैव प्लस ओवर देयर, you need two operands to work on if you have a minus over there. ठीक है, सिमिलरली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में देर आर टू मोर टाइप ऑफ ऑपरेटर। अच्छा, ये तो हो गया अरिथमेटिक। ठीक है, लॉजिकल हमने क्या देखा? वी हैव सीन इक्वल टू। डोंट कंफ्यूज दिस विथ इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू क्या करता है? असाइनमेंट करता है, मतलब इट विल टेक अ वैल्यू एंड इट विल असाइन इट टू अ वेरिएबल। दिस इज डिफरेंट। इक्वल टू क्या करता है? इट विल कंपेयर ए एंड बी। सो इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ अरिथमेटिक में ही देर आर सम अदर टाइप ऑफ ऑपरेटर्स विच आर कॉल्ड एज यूनरी इंक्रीमेंट एंड यूनरी डिक्रीमेंट। यूनरी स्टैंड्स फॉर 1 विच मीन्स ये कितने ऑपरेंड्स लेंगे? सिर्फ एक ऑपरेंड लेंगे। ठीक है, सो हाउ डज दिस वर्क? इंक्रीमेंट मतलब क्या? जो भी वेरिएबल है उसको आप इंक्रीज बाय 1 करो। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू बाय 1। एंड डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? जो भी वेरिएबल है उसको आप डिक्रीज बाय 1 करो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यूनरी ऑपरेटर्स वर्क। अगर आपने लिखा है प्लस प्लस एक वेरिएबल के आगे, देन इट सिंपली मीन्स दैट इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 1। अगर आपने लिखा है माइनस माइनस एक वेरिएबल के साथ, इट सिंपली मीन्स दैट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल बाय 1। नाउ हियर इज द थिंग, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सभी को इसमें होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्लस प्लस एंड बिटवीन प्लस प्लस ए। डू यू ऑल्सो हैव दिस डाउट? प्लीज आंसर इन द चैट। ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में डिफरेंस क्या है? डू यू हैव दिस डाउट विथ यू? नहीं, जानवी सेइंग नो, बाकी लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, देखो, लेट अस ट्राई टू थिंक अबाउट। ठीक है, प्लस प्लस है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इट सिंपली मीन्स दैट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू। ठीक है, इंक्रीमेंट तो दोनों ही कर रहे हैं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ए की वैल्यू अगर 5 है तो मैं चाहे प्लस प्लस ए लिखूं या ए प्लस प्लस लिखूं, वो इंक्रीमेंट करने वाला है। तो 5 से एंड ऑफ द डे वैल्यू होने वाली है 6। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि व्हाट इज हैपनिंग करेंटली एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, ए प्लस प्लस जब मैं लिखता हूं, इट सिंपली मीन्स कि करेंटली आप जिस ऑपरेशन में हो, यूज करंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यूज करंट वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद आप जब इंक्रीमेंट कर दोगे तो यूज इंक्रीमेंटेड वैल्यू इन द नेक्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, ए प्लस प्लस का मतलब क्या है? करंट ऑपरेशन में आप ए की पुरानी वैल्यू यूज करो, लेकिन जब नया ऑपरेशन आएगा जिसमें आपको ए की जरूरत पड़ेगी, तब आप अपडेटेड इंक्रीमेंटेड वैल्यू यूज करना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक बार कोड करके देखते हैं, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेट अस से मैंने ए की वैल्यू रखी है यहाँ पे 10। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रिंटिंग ए प्लस प्लस ओवर हियर एंड इन द सेकेंड लाइन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, इधर मैं बैकस्लैश एन डाल देता हूं ताकि नए लाइन पे आउटपुट आए। व्हाट इज हैपनिंग इज ए की करंट वैल्यू इज 10, नो डाउट इन हियर। मुझे क्या प्रिंट करना है? एक इंटीजर। व्हाट इज दैट इंटीजर एग्जैक्टली? दैट इंटीजर इज ए प्लस प्लस। सो व्हाट विल हैपन इज करंटली ए प्लस प्लस का मतलब क्या है? यू यूज द करंट वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर, but whenever you are using a
for the next operation, you use the incremented value of a. So what will happen when you are printing this, and since it is a plus plus, तो a की ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, बट इन द नेक्स्ट ऑपरेशन व्हेनेवर a इज यूज्ड, दैट इज हियर इन द सेकंड लाइन, तब इंक्रीमेंटेड वैल्यू यूज होगी. मतलब यहाँ पे जब आप a को प्रिंट करोगे तो 11 प्रिंट होगा, बट यहाँ पे जब आप a को प्रिंट करोगे तो 10 प्रिंट होगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव रिटन a प्लस प्लस. a प्लस प्लस का क्या मतलब है? करंट ऑपरेशन जब भी, राइट नाउ इफ यू नीड a, you will use the previous value, that is initial value 10, but second operation से आप updated incremented value use करोगे. So if you run this, we will get first answer as 10, second answer as 11. Can you get this? Can you see this? ये चीज समझ में आया? Answer in the chat please. Yes? अच्छा, तो अगर मैं सेम चीज प्लस प्लस ए के साथ सोचूं, प्लस प्लस ए के साथ, so what is it saying? It is simply saying कि करंट इंक्रीमेंट करो, करंट इंक्रीमेंट करो और उसके बाद यही वैल्यू यूज कर लो, यूज दी इंक्रीमेंटेड वैल्यू. आई एम सॉरी फॉर दी हैंडराइटिंग. आर यू गेटिंग दिस? तो आप जब प्लस प्लस ए कर रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि इसको पहले इंक्रीमेंट करो और फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू को यूज कर लो. बट यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे? पहले जो करंट वैल्यू वो यूज कर लो, फिर बाद में इंक्रीमेंट करके आगे जब भी काम लगे तब इंक्रीमेंटेड वैल्यू का यूज करना. सो इंस्टेड ऑफ a plus plus, if I write plus plus a over here, so what will happen here? Since we have written plus plus a, तो a की वैल्यू जो यहाँ पे प्रिंट होने वाली है, that will be the incremented value, which is 11. and बाद में a के ऊपर कोई ऑपरेशन वापस हुआ नहीं है, so the incremented value again will be printed over here, which is 11. So if I run this now, दोनों टाइम पे 11 प्रिंट हुआ. बट अगर मैं सेम चीज इसको a प्लस प्लस करके लिखता, सो ये क्या बताता? करंट ऑपरेशन में जो a तुमको प्रिंट करना है, टेक द प्रीवियस वैल्यू ओनली, बट इन द नेक्स्ट ऑपरेशन यू इंक्रीमेंट दैट वैल्यू. सो इफ आई वुड हैव रन a प्लस प्लस एंड a, तो वो क्या करता? पहले पुरानी वैल्यू को ही प्रिंट कर देता 10, उसके बाद वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू को प्रिंट करता, दैट इज 11. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो? यस, ओके. तो अगेन लेट मी क्विकली रिवाइज. अरिथमेटिक देखा है, अरिथमेटिक में यूनरी देखा है. अच्छा, यूनरी के अंदर देर आर यूनरी प्लस ऑल्सो, यूनरी माइनस ऑल्सो. दीज आर जस्ट देयर टू डिनोट द साइन. अगर मैं +3 लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि दिस नंबर 3 इज पॉजिटिव. अगर मैं -3 लिखता हूं तो इट सिंपली मीन्स दैट दिस नंबर इज नेगेटिव. ठीक है. उसके बाद देयर इज यूनरी इंक्रीमेंट, यूनरी डिक्रीमेंट. ठीक है. इसके अपन ने दो टाइप्स देखे. This is postfix and this is prefix, plus plus a. Similarly वैसी चीज a माइनस माइनस और माइनस माइनस a में भी होगा. Let us quickly go around. अब बात हो ही रही है तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस माइनस, so what will it say? It will simply say कि पहले a की करंट वैल्यू यूज कर लो इस ऑपरेशन में, फिर उसकी डिक्रीमेंटेड वैल्यू नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज हियर, तब आप यूज कर लेना. So what will be the results? The final printing जो वैल्यूज प्रिंट होंगे, that would be 10 and decremented value that is 9, which you can see over here. देखो पहले 10 प्रिंट हुआ फिर 9 प्रिंट हुआ. लेकिन सिमिलरली अगर मैं माइनस माइनस ए प्रिंट करता तो व्हाट इज हैपनिंग? ये कह रहा है कि अभी के अभी इंक्रीमेंट करो एंड अभी से ही उस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉरी अभी के अभी डिक्रीमेंट करो एंड यूज दैट डिक्रीमेंटेड वैल्यू फ्रॉम राइट दिस इंस्टेंस. तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस ए जैसे आपने किया, the decremented value only will be used. मतलब 10 था, decrement होके 9 हो गया, तो 9 will be printed here also and here also. So if I run this again using minus minus a, both the values are 9. ये चीज समझ में आया? Please answer in the chat, yes, no. ठीक है. These are all unary. Unary क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हो रहा है, प्लस प्लस a प्लस प्लस, माइनस माइनस a माइनस माइनस, जस्ट वन वेरिएबल. देन वी सॉ बाइनरी. तो उसमें क्या होता है? दिस इज बाइनरी एडिशन. इस एडिशन करता है किसका? दो ऑपरेंड्स का. देन देयर इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो. मीटिंग इज कैंसल्ड का मैसेज नहीं आना चाहिए. कैन यू जस्ट शेयर हर? एक सेकेंड रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड ना.
आई सेंट यू द करंट मीटिंग लिंक इन द चैट, वो कॉपी पेस्ट करके उसे भेज दो ना, शी विल बी एबल टू देन ज्वाइन इट। ठीक है, चलो विल मूव अहेड। देन वी सॉ समथिंग अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। इक्वल टू कंपेयर देम, टेल्स देम इफ द वेरिएबल्स आर इक्वल। नॉट इक्वल टू, वो बताते हैं कि इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दैट वी हैव टू स्टडी, एंड दैट इज आवर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सर्किट डिजाइन या ऐसा कुछ अभी कभी माइक्रो प्रोसेसर या कुछ पढ़ा होगा, तो यू वुड हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज एंड गेट्स, है ना, और गेट्स एंड नॉट गेट्स। उसके अलावा भी होते हैं, बट दीज थ्री आर द बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट वी आल्सो हैव इनसाइड ऑफ सी। एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम्परसेंड साइन के साथ, और को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग टू ऑफ दीज लाइन्स। नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एन एक्सक्लेमेशन मार्क। So what does and do, what does or do, and what does not do? Let us check. अगर मैं कहता हूं A and B, so it will be true, मतलब it will return 1 if and only if A and B are both true. ठीक है, A and B का वैल्यू ट्रू होगा अगर बोथ A and B दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू रहें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स चेक, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज A and B। सो ट्रू और फॉल्स अगर हम लेके चलें तो देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले A and B दोनों फॉल्स हो जाएं, A could be true लेकिन B फॉल्स हो जाए, A could be false and B could be true and both of them would be true. So A and B क्या बोलता है? A and B says the result will be true only if both of them are true. So यहाँ पे दोनों false है, इसके लिए result false। यहाँ पे सिर्फ एक false है, but फिर भी result will be false because both of them will be true, only then the output will be true. यहाँ पे भी since one of them is false, the output is false. In the last case, both of them are true, therefore the output would be true. Are you getting this? ये चीज समझ में आ रहा है? एंड कैसे चल रहा है? कैन यू आंसर दिस इन चैट? चैट में बताओ, यस नो? यस, ठीक है। लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है int a इज इक्वल टू 10 एंड आई हैव रिटन int b इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम सिंपली सेइंग a ग्रेटर देन b, ठीक है, एंड b लेस देन a। अगर मैंने ऐसे लिखा, सो सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, लेट मी डिलीट दिस। व्हाट इज हैपनिंग? एंड क्या बोलता है कि आई विल रिटर्न ट्रू ओनली इफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर बोथ ट्रू। तो यहाँ पे देखो, a ग्रेटर देन b है क्या? नो, a is 10, b is 20, a is not greater than b, so this is actually 0, it is a false value. b less than a है क्या? No, b is 20, a is 10, b is not less than a, therefore this will be 0. तो टेक्निकली क्या हो रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है 0 and 0, तो 0 and 0 का वैल्यू we know it is 0, therefore the value that should be printed over here should be 0. Let us see a greater than b and b less than a, अगर इसका वैल्यू चेक करने जाए तो the answer would be 0. ये चीज समझ में आया? आंसर इन द चैट, यस नो? यस, जानवी saying yes. What about all? If the first argument itself, yes. What happens is, देखो, computer is very smart. What will it say? कि and अगर मैंने लिखा है तो दोनों साथ में ट्रू होने चाहिए ना। तो अगर पहला वाला ही फॉल्स हो गया, दैट मीन्स मुझे दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। वो पहले वाले को चेक करता है, अगर वही फॉल्स निकल गया तो सीधा आंसर 0 दे देता है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक, लेट अस गो बाय द ट्रेडिशनल वे बाय विच वी सॉल्व दीज क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे a लेस देन b एंड b ग्रेटर देन a, तब देखो क्या हो रहा है? इज a लेस देन b? यस, 10 इज लेस देन 20, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब 1।
Is B greater than A? Yes, B is 20, A is 10. B greater than A. So this is also a true statement. So 1 and 1, both of them are true. Therefore, the result should be also true. So if I try to run this, the answer should be 1. ठीक है, तो एंड ऑपरेटर समझ में आया सभी को? प्लीज आंसर इन द चैट. Yes, logical and clear to all of you? Yes, okay. Let us now talk about logical और क्या बोलता है? अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करो तो ये बोल रहा है या तो. ठीक है, या तो का मतलब क्या है कि इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन कि तुम या तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करो या तो टफ क्वेश्चन सॉल्व करो, सो इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव अ चॉइस. या तो फर्स्ट वन शुड बी ट्रू या तो सेकंड वन शुड बी ट्रू. क्या दोनों ट्रू हो सकते हैं? यस, बोथ ऑफ देम कुड बी ट्रू. व्हाई? बिकॉज चाहे वन ट्रू हो चाहे टू ट्रू हो, अगर दोनों ट्रू हो गए तो दोनों ही ट्रू हो गए ना. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक सेकेंड, विल सी इट विद द वैल्यूज. और क्या बोलता है? दिस विल बी ट्रू इफ एनी वन इज ट्रू. सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इज, अगर मैंने लिखा ए एंड बी, ठीक है, एंड अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ए और बी, सो लॉजिकली 4 पॉसिबिलिटीज हैं. ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू एंड ए इज ट्रू, बी इज ट्रू. अब देखो यहां पे ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए, इसके लिए दिस इज फॉल्स. दिस विल बी ट्रू कब? इफ एनी ऑफ देम इज ट्रू, कोई भी एक ट्रू हो जाना चाहिए. ठीक है, या तो ए ट्रू हो जाए या तो बी ट्रू हो जाए, तब ये ट्रू हो जाएगा. सो यहाँ पे देखो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, बट स्टिल द आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि इसने क्या कहा है, ए या बी दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो माय आंसर विल बी ट्रू. सिमिलरली हियर ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, देयरफॉर द आंसर विल बी ट्रू. बट यहाँ पे देखो लास्ट केस, ए इज ट्रू, बी इज ऑल्सो ट्रू, तो दोनों साथ में ट्रू हो गए. तो क्या दोनों में से कोई एक ट्रू हुआ? यस, ऑब्वियसली दोनों में से एक ट्रू हुआ, मतलब दोनों ही ट्रू है ना यहाँ पे. सो देयरफॉर द आंसर विल बी 1. और का बेसिक इंग्लिश में मतलब क्या होता है? इफ यू आर सेइंग ए और बी, इट सिंपली मींस ए या तो बी या तो बोथ. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आंसर इन द चैट, यस, नो. ठीक है, ये चीज समझ में आया? लेट अस ट्राई टू सी हाउ दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग. तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, तो देखो ए ग्रेटर देन बी तो फॉल्स है, तो यहाँ पे आ गया 0. बी ग्रेटर देन ए, यस ऑब्वियसली बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे आया 1. तो 0 और 1 दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो फाइनल आउटपुट ट्रू होता है. Therefore, when you execute this statement, the output will be 1. ठीक है, did you all understand और logical और कैसे वर्क कर रहा है? How are arguments checked in this? See, it again checks the first one. अगर पहला वाला false मिला, then it will go back to the second one. But अगर पहला वाला true मिल गया इसको, तो इसको पता है कि दोनों में से कोई एक true मिलना था, तो पहला वाला ही ट्रू मिल गया, तो इट विल सिंपली रिटर्न ट्रू. ठीक है, हाँ. नाउ लेट अस गो ऑन टू द नॉट ऑपरेटर, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. नॉट को हम सी में कैसे लिखते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क से. एंड ये क्या करता है? सिंपली निगेट करता है. निगेट मतलब 0 का 1, 1 का 0. तो इफ दिस इज ए एंड ए इज अगर फॉल्स, तो नॉट ए क्या करेगा? 0 का 1 कर देगा. सिमिलरली ए अगर ट्रू है तो नॉट ए क्या करेगा? ट्रू का फॉल्स कर देगा. लेट अस सी हाउ दिस इज एक्चुअली वर्किंग. अगर मैंने यहां पे लिखा है, देखो, इफ आई एम सेइंग ए लेस देन बी, ठीक है, इफ आई हैव रिटन ए लेस देन बी, सो इज ए लेस देन बी? यस, ए लेस देन बी ट्रू है. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे नॉट डाल देता हूं तो व्हाट विल हैपन? ए लेस देन बी, इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज 1. Not of 1 will be 0, and therefore the final value that will be printed over here is 0. Let us see, let us run the code and see. Yes, it is 0. भले a less than b is true, but उसके आगे not लगा दिया तो वो true को false कर दिया, इसीलिए आंसर was 0. अगर मैं यहाँ पे a greater than b लिखता हूँ, so a greater than b is false,
so it is 0. But since there is a not outside waiting, not of 0 will be 1. Therefore, if you print this, the answer would be 1. Are you getting this? Please answer in the chat, yes, no. ये चीज समझ में आ रहा है सभी को? If we print not of 0, will it print 1? Yes, it will print 1. चेक कर लो, ये देखो, अगर मैंने सीधा यहाँ पे प्रिंट किया not of 0, ये देखो आंसर क्या है? 1. ठीक है? Yeah. So what you are basically saying is you take not of 0, whatever the value is there, you print it over here as an integer. ठीक है? तो अगर मैं इसको फ्लोट में प्रिंट करने जाता तो वो 1.000000 करता. ये देखो यहाँ पे the value that it will print is इसने क्या किया? हाँ, तो I think this works only on integers. No, it should not work only on integers. So if I am using float values, let me just try with 0.0 and see. तब वो शायद 1.0000 प्रिंट करेगा. It is still printing 0. ठीक है, तो देखते हैं. ये I think it is not working on float. वो क्यों नहीं काम कर रहा है? I'll check it out and I'll share it with you on the WhatsApp group. But yeah, not 0, it will print 1. And अगर हम यहाँ पे not 1 लिखते तो again it would have printed 0. देखो यहाँ पे. ठीक है, तो अब तक चीजें क्लियर हैं? आंसर इन द चैट, यस, नो, यस, ओके. ठीक है, सो अभी तक क्या देखा? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे. देयर आर समथिंग कॉल्ड एज बिटवाइज ऑपरेटर्स, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे आराम से. द नेक्स्ट ऑपरेटर्स विच वी हैव टू सी इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ठीक है, नाम से ही पता चलता है ये क्या करते हैं. दिस हेल्प अस टू असाइन सम वैल्यूज. तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले से देख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू. इक्वल टू क्या करता है? राइट साइड में एक वैल्यू है, लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल है. इट सिंपली टेक्स दिस वैल्यू, असाइन्स इट टू अ वेरिएबल. दिस वी ऑलरेडी नो. सो व्हाट आर द अदर टाइप्स? द अदर टाइप इज प्लस इक्वल टू. अगर आप लिखते हो a प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है? इट इज सिंपली सेइंग a इज इक्वल टू a प्लस b. ये क्या बोलता है? a में b ऐड कर दो. दैट मीन्स खुद में b ऐड कर दो और उसको स्टोर भी करो a के अंदर. सिमिलरली इफ यू से माइनस इक्वल टू, सो इफ यू से a माइनस इक्वल टू b, व्हाट इट इज सेइंग? a इज इक्वल टू a माइनस b. So that can be extended to all the arithmetic operators that we have seen. अगर आप लिखते हो a multiply equal to b, so it simply means a is equal to a into b. अगर आप लिखते हो a divide equal to b, then you are saying a is equal to a divided by b. अगर आप लिखते हो a mod equal to b, it is simply saying a is equal to a mod b. Are you getting this? ये चीज समझ में आ रहा है? Yes, okay. ठीक है. देयर इज वन मोर, साइज ऑफ ऑपरेटर. ये भी हम देख चुके हैं. साइज ऑफ के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो ये जो पैरामीटर आपने पास किया है वो उसका साइज बता देता है. दैट वी हैव सीन. फॉर एग्जांपल इफ यू से साइज ऑफ एंड अगर अंदर पास किया इंट, ठीक है, साइज ऑफ इंट अगर आप लिखते हो तो इट मे रिटर्न 2, इट मे रिटर्न 4. दीज वैल्यूज आर इन बाइट्स. तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हो, इट वुड इधर रिटर्न 2 और रिटर्न 4. मेरे सिस्टम पे इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स, इसीलिए इफ आई टाइप साइज ऑफ इंट मुझे आंसर आएगा 4. आर यू गेटिंग दिस? यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? प्लीज आंसर इन द चैट, यस, नो. एंड दिस क्विकली फेमिलियराइजिंग यू. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतनी ऑपरेटर्स है. यू माइट हैव टू गूगल अ लिटिल बिट, थोड़ा खुद से भी एफर्ट्स मारना पड़ेगा. बट आई एम ट्राइंग टू फेमिलियराइज यू विथ. हाँ, 32 बिट पे सी इट ऑल्सो मैटर्स अपॉन विच कंपाइलर यू आर यूजिंग. सिर्फ सिस्टम के ऊपर नहीं होता, इट ऑल्सो मैटर्स ऑन विच कंपाइलर यू आर यूजिंग. फॉर एग्जाम्पल माई डेस्कटॉप करेंटली इज 32 बिट ओनली. तो मेरा डेस्कटॉप 32 बिट ही है, लेकिन उसके अंदर फिर भी 4 बाइट ले रहा है. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन. देयर इज वन लास्ट ऑपरेटर दैट आई वांट यू टू नो अबाउट, दैट इज द टर्नरी ऑपरेटर. जैसे यूनरी क्या कर रहा था? इट वर्क्स ऑन वन वेरिएबल. बाइनरी वर्क्स ऑन 2
of the operands. So ternary मतलब 3. How do we write this? See, we write one expression, then we write a question mark, then we write an expression 2, then we write colon, then we write expression 3, and finally अपना semicolon to end this. So what exactly is happening here? जो ternary operator है, it is used for simple what can you call this, for conditions. मतलब क्या है, expression 1 को वो check करता है. If this expression 1 is true, then it executes expression 2. ठीक है, if true, if expression 1 becomes true, it will execute expression 2. And अगर expression 1 false हो जाता है, then it will directly execute expression 3. So if false, then it will simply execute expression 3. Let us just take an example of it. Let us say मैंने एक value user से ली है, या मान लो this value is 10. I want to check if it is even or it is odd. ठीक है, मुझे चेक करने के क्या ये इवन है या ऑड है. तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं. अच्छा, डिविजिबल बाय 2 मतलब अगर मैं उसको मॉड करता हूं बाय 2 तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0. तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम चेकिंग कि इस नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है, इज दिस इक्वल टू, नहीं डबल इक्वल टू. ठीक है, हियर वी आर कंपेयरिंग. व्हाट वी आर कंपेयरिंग, कि नंबर को 2 से जब डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो 0 आ रहा है कि नहीं. इसीलिए वी हैव यूज्ड डबल इक्वल टू साइन. ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे सेम टर्नरी यूज करना होता तो मैं क्या लिखता, n mod 2 इक्वल टू 0. अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है मतलब इट इज एन इवन, तो यू डू दिस प्रिंटफ इवन. अच्छा, अगर ये फॉल्स हो गया तो कोलन के बाद यू राइट प्रिंटफ ऑड. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यू सिंपली राइट डाउन योर सेमीकोलन. क्या चीज समझ में आ रहा है, हाउ वी आर वर्किंग विद दिस. मान लो n की वैल्यू होगी 5, तो वो क्या करेगा, इट विल सिंपली फर्स्ट चेक n mod 2, n mod 2, 5 mod 2. एक्चुअली 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है, सो दिस इज 1. अच्छा, क्या 1 इक्वल है 0 के, नो इट इज नॉट. सो दिस एंटायर स्टेटमेंट हैज बिकम फॉल्स. अच्छा, फॉल्स हुआ तो क्या करने का, कोलन के बाद वाला चीज एग्जीक्यूट करने का. देयरफॉर इफ आई एंटर n इज इक्वल टू 5, द आंसर शुड बी ऑड. क्यों, क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा हूं. और आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो. यस, ठीक है. अच्छा, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू विच इज काइंड ऑफ इनसाइड ऑफ द बुक्स, एंड वो थोड़ा सा इंटरव्यू में परेशान कर सकता है आप लोगों को. मान लो दिस नंबर, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ नंबर n. ठीक है, मान लो द नंबर n एंड आई हैव रिटन इट एज 10. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आई एम सेइंग कि देखो n mod 2 जो है, इज इट इक्वल टू 0. अच्छा, अगर इक्वल टू 0 हो गया मतलब इवन है, सो आई विल से प्रिंटफ, आई विल से इवन. अच्छा, अगर mod n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो देन आई हैव टू राइट प्रिंटफ ऑफ ऑड. ये तो आपने किया, बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिक्लेयरिंग वन मोर इंटीजर, लेट अस से c. अब मैं ये कर रहा हूं कि c इज इक्वल टू, आई एम डूइंग दिस. ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया. व्हाट इज हैपनिंग, n mod 2 इक्वल टू 0. इफ दिस इज ट्रू, प्रिंट इवन. इफ दिस इज फॉल्स, प्रिंट ऑड. तो करेंटली जस्ट बिकॉज द n वैल्यू इज 10 mod 2, yes it is equal to 0, तो वो प्रिंट क्या करना चाहिए, इवन. लेकिन मैंने क्या किया है, सी प्रिंट इवन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, तो there is something getting returned which I am storing it inside of C, and now I am printing C. वो क्या रिटर्न हो रहा है और वो क्या चीज है वो देखते हैं पहले. let us try to print this and see what is happening. तो टेक्निकली क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन प्रिंट होना चाहिए. एंड जो भी C के अंदर वैल्यू है
वो प्रिंट होना चाहिए। सो लेट अस सी, देखो क्या प्रिंट हुआ। पहले तो इवन प्रिंट हुआ, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन दिस वाज रिटर्निंग समथिंग, this was returning something which got stored in C, and we printed that C, and the value that is getting printed is 4. मान लो n की वैल्यू 10 नहीं, n की वैल्यू 5 होती, then odd print होना चाहिए, right? odd print होना चाहिए, but now you see what is getting printed, odd के बाद 3 print हो रहा है, odd के बाद 3 print हो रहा है। तो मतलब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो C के अंदर 4 स्टोर हो रहा था, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो C के अंदर 3 प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड ऑफ C, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ printf। तो कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है? विल अगेन गो टू c++.com, वहां पे देखो व्हाट डिड वी डू, c++.com के अंदर रेफरेंसेस में गए, उसके अंदर cstdio में गए, उसके अंदर printf को चेक कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो इफ यू गो डाउन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिटर्न वैल्यू। सो रिटर्न वैल्यू printf, printf क्या रिटर्न करता है? printf returns on success, it returns the total number of characters written is returned। मतलब printf जो है ऐसा नहीं है कि जब आप printf and you are printing some statement then it is not returning anything, it is returning something to the system। what is it returning? the number of characters that have been printed। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, जब printf आप इवन कर रहे थे तो आपने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए? 1 2 3 4। इसलिए ये जो printf क्या रिटर्न करेगा, इवन तो प्रिंट कर दिया लेकिन सिस्टम को क्या रिटर्न कर रहा था? 4। लेकिन आपने वो 4 की वैल्यू को क्या की, वो 4 की वैल्यू आपने C में स्टोर कर दी। इसीलिए जब इवन प्रिंट हो रहा था तो C के अंदर जा रहा था 4। वाई? बिकॉज इवन, EVEN, 4 कैरेक्टर्स। लेकिन जब n was 5 which was odd, the odd was getting printed and printf odd print करने के बाद सिस्टम को क्या रिटर्न करेगा? कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं। तो ODD 3 कैरेक्टर्स वर प्रिंटेड। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता एंड दिस इज एन इवन नंबर, सो व्हाट इज हैपनिंग, वो इवन तो प्रिंट करेगा लेकिन C के अंदर क्या स्टोर होगा? जो printf ने रिटर्न किया है। printf क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड बाय इट। तो 1 2 3 4 5। so if we run this now you will see the output to be even 5। can you see this? are you able to understand this? please answer in the chat yes no। so एक चीज हमेशा याद रखना, printf जो है वो भी सिस्टम को रिटर्न करता है। वो क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट इट हैज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे even had printed 5 characters, EVEN and a space which we took and we stored inside of this C। इसलिए जब हमने C प्रिंट किया तो आंसर आया 5। Are you getting this? अगर मैं even की जगह पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अभिजीत कुशवाहा 1 2 3, तो अभी देखो क्या हो रहा है। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 22 23। तो टेक्निकली अभी आंसर क्या आना चाहिए? इवन 23। कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं? 23 कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो printf के अंदर है डॉट 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 सब, ये तो printf के अंदर ने प्रिंट किया, लेकिन जब मैं printf C कर रहा हूं तब 23 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि printf ने क्या कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए थे? 23। डिड यू गेट दिस? प्लीज आंसर इन द चैट यस नो। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं हो गए। आई नो लाइक दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम थ्रोइंग एट यू, बट नो इश्यूज। बाद में वीडियो को एक बार और फिर से देख लेना। अच्छा, इफ C इज नॉट इनिशियलाइज तब कहाँ जाता है? तब वो सिस्टम के पास जाता है। इट गेट्स लॉस्ट, इट इज टेकन बाय द सिस्टम। देखो गौरव, ऐसे सोचो कि सिस्टम को कैसे पता चल रहा है कि printf हैज एक्चुअली वर्कड। मतलब हम तो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कि printf का जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे आ गया,
बट सिस्टम को भी तो पता चलना चाहिए कि प्रिंटफ ने एक्चुअली काम कर लिया है, इसलिए अब नए नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करो। तो ये जो कैरेक्टर्स रिटर्न होंगे वो सिस्टम के पास जाएगा, तब जाके अगले इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने वाले हैं। आर यू गेटिंग दिस? लेट अस से यू हैव अ टीम ऑफ 5 पीपल। नो नो नो, इट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। अगर आप उसको डेलिबरेटली स्टोर नहीं कर रहे हो तो वो स्टोर नहीं हो रहा है। नो, इट विल बी टेकन बाय द सिस्टम। ठीक है, ओके चलो। तो आई थिंक दिस सम्स अप द रिक्वायर्ड क्या कहते हैं डिस्कशन ऑन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। वी वर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर्स। तो अभी अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट मी इंक्रीज द साइज। टास्क बहुत सिंपल है। गिवन द मील प्राइस ऑफ अ मील, बेसिक कॉस्ट ऑफ अ मील, वो आपको दिया होगा। आपको टिप परसेंट दिया होगा कि उस मील का कितना परसेंटेज आपको टिप में देना है, एंड आपको टैक्स परसेंटेज दिया होगा कि उस मील का कितना आपको टैक्स में देना है। तो वी हैव टू फाइंड एंड प्रिंट द मील्स टोटल कॉस्ट। तो टोटल कैसे मिलेगा? जो उसका बेस प्राइस था मील का, प्लस उसके ऊपर कितना टिप लगा है, प्लस उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर इज अ नोट फॉर बी श्योर टू यूज प्रिसाइज वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशन और यू मे एंड अप विद इनकरेक्टली राउंडेड रिजल्ट्स। इसीलिए मैंने तुम्हें तभी कहा था कि व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद डिवीजन, ध्यान रखना कि आपके वैल्यूज ट्रंकेट नहीं हो रहे। ठीक है, सो इनपुट फॉर्मेट लेट अस सी, देयर आर 3 लाइंस ऑफ इनपुट। सबसे पहले मील कॉस्ट मिल रहा है हमें, फिर हमें टिप परसेंट मिल रहा है, मतलब मील कॉस्ट के ऊपर कितना टिप लगने वाला है, एंड देन टैक्स परसेंट के मील कॉस्ट के ऊपर कितना टैक्स परसेंट लगने वाला है। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। अच्छा, अभी देखो क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट इज राउंडेड इंटीजर रिजल्ट। एक तो वो राउंडेड है, दूसरा वो इंटीजर है। तो किसी चीज को राउंड ऑफ करना मतलब क्या? इट सिंपली मीन्स कि अगर वो 0.0 से लेके 0.5 के बीच में, देन यू गो टू द प्रीवियस इंटीजर। ठीक है, और अगर वो 0.5 से लेके 0.99 मतलब इतने के बीच में, देन यू गो टू द नेक्स्ट इंटीजर। मतलब क्या? अगर मैंने लिखा 2.5 एंड इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, तो इट विल गो बैक टू द प्रीवियस इंटीजर, इट विल गिव मी द वैल्यू 2। लेकिन अगर मैंने लिखा 2.51, तो फिर वो नेक्स्ट राउंड इंटीजर 3 रिटर्न करेगा। आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रही है राउंड कैसे करते हैं? यस yes. अच्छा, एक और चीज उसमें क्वेश्चन में डेलिबरेटली मेंशन किया है कि जो आप राउंड करोगे उसको आपको इंटीजर की तरह राउंड करना है, फ्लोट की तरह नहीं। मतलब अगर आप 2.565 ऐसे कुछ तो आप राउंड कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन 2.56। सो ये अगर आप फ्लोट की तरह राउंड कर रहे हो तो इट विल गेट राउंडेड एज 3.000000। बट आपको इसको इंटीजर में चाहिए, you don't want this float value, you need to again convert this into an integer। तो आपको आंसर चाहिए 3। Are you getting this? सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? यू आर राउंडिंग इट एंड यू आर स्टोरिंग इट एज एन इंटीजर। सो अगेन, what are we given? We are given something called as the base price of the meal। ठीक है, मील का कॉस्ट दिया है, हमें टिप परसेंटेज दिया है, हमें टैक्स परसेंटेज दिया है। सो हाउ विल गेट द टोटल? टोटल विल बी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका, प्लस जितना परसेंटेज टिप है। अगर 5% टिप है, मतलब जो भी टिप परसेंटेज है डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट। मान लो अगर कॉस्ट 100 रुपीज है एंड उसके ऊपर टिप है 5%, सो इट सिंपली मीन्स 5/100 इनटू द टोटल कॉस्ट। सो टिप डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट, प्लस जो भी उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो वो कैसे मिलेगा? टैक्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, यस नो। ये चीज समझ में आ रहा है? ओके, सो सी यहाँ पे दैट इज आई वाज सेइंग, यहाँ पे डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे डिवीजन आ रहा है। देयरफॉर देयर आर 2-3 वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस। ये जो 100 है उसको आप 100.0 करके लिख दो, पहली चीज। दूसरी चीज आप उसको ऐसे लिख दो, फ्लोट टिप टाइप कास्टिंग कर दो। या सबसे इजी तरीका, इफ यू आर डिवाइडिंग समथिंग बाय 100, यू आर एसेंशियली डूइंग व्हाट? 0.01 से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। आर यू गेटिंग दिस? मतलब इफ यू आर डूइंग 5
divided by 100, it is actually saying 0.05. ये चीज ठीक है। तो अगर आपको टिप डिवाइडेड बाय 100 करना है तो आप सीधा इसको ऐसे लिखो 0.01 इंटू टिप। आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रहा है? आंसर इन द चैट। यस। तो आई कैन सिंपली राइट डाउन अ फॉर्मूला। टोटल क्या होगा, जो भी उसकी कॉस्ट थी प्लस टिप डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्लस टैक्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट। इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई इट अगेन, इसको मैं कैसे लिखूंगा? कॉस्ट प्लस 0.01 इंटू टिप इंटू कॉस्ट प्लस 0.01 into tax into cost. This is a different entity, this is a different entity, this is a different entity. ठीक है, बट ये जो फाइनल टोटल चाहिए हमें, दैट वी वांट एज एन इंटीजर, देयरफॉर टोटल को मैं एज एन इंटीजर डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, बट ये देखो, दीज आर ऑल विल गेट दीज वैल्यूज एज फ्लोट्स। तो हमें दो चीजें करनी है। फर्स्ट वी हैव टू राउंड इट and then we have to store it as an integer. So how to do that? Round करने के लिए there is a function in C which is called as round function. Round function के आप अंदर जो भी लिखते हो उसको वो round करके आपको return करेगा. So whatever formula, this formula that we had written, उसको हम actually pass करेंगे round function के अंदर, तो वो round हो जाएगा and उसको हमें integer में convert करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको typecast कर देंगे again integer लिख के। Are you getting this? आंसर इन द चैट। ऐसे ये चीज समझ में आ रहा है सभी को? ये हुआ क्या है, जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसको हमने राउंड कर दिया, तो ये राउंडेड वैल्यू है लेकिन वो फ्लोट में है। तो आपको क्या करना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसीलिए आप ब्रैकेट में इंटीजर आगे लिखते हो उसके, सो दैट इट गेट्स टाइपकास्टेड एज एन इंटीजर। सो टोटल विच इज गेटिंग स्टोर्ड एज एन इंटीजर। समझ में आ रहा है? Are you all getting this? Answer in the chat, yes, no? Okay, so let me just go back and write down the code. ठीक है, if I am writing the code, यहाँ पे हो क्या रहा है, this is all int, और HackerRank में ये होता है कि आधे से ज्यादा कोड पहले से रिटर्न होता है, so we don't have to worry about it, we just have to complete the function. Function में क्या लिखा हुआ है, they are giving us meal cost which is a double value, tip percentage which is integer value, टैक्स परसेंटेज विच इज ऑल्सो एन इंटीजर वैल्यू। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है टोटल। सो आई एम सेइंग इंट टोटल। सो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ठीक है, सो इंट टोटल, तो मुझे पता है कि फर्स्ट आई हैव टू राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, इट इज सिंपली मील कॉस्ट जो भी है, ठीक है, प्लस सेकेंड क्या था, टिप परसेंटेज उसमें ऐड करना है। सो इट इज 0.01 इंटू टिप परसेंटेज इंटू अगेन मील कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसके अंदर ब्रैकेट क्या है, टैक्स परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो दैट इज 0.01 इंटू टैक्स परसेंट इंटू मील कॉस्ट। ठीक है, तो ये मेरा हो गया बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अब टू राउंड इट। तो मैं इसके आगे एक ब्रैकेट डाल रहा हूं, ब्रैकेट आई एम क्लोजिंग ओवर हियर, एंड इसके आगे आई एम राइटिंग राउंड। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, लेट मी डिक्रीज द साइज जस्ट सेकेंड। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर, ये मेरा पूरा फॉर्मूला है, उसको मैंने राउंड कर दिया। अच्छा, सिर्फ राउंड नहीं करना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए आगे एज एन इधर तक what we have done, we have written the basic formula, उस फॉर्मूला को हमने राउंड के अंदर डाला है ताकि वो राउंड हो जाए वैल्यू, एंड देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव टाइपकास्टेड इट एज एन इंटीजर। इज दिस मच पार्ट क्लियर टू यू? आंसर इन द चैट। नो, नॉट सिंपली उसको राउंड करेगा, वही मैं बता रहा था
कि मैं लिखता हूँ 0.414, तो अब राउंड फंक्शन क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा 0.000000. वाई? इट इज राउंडिंग इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू एन इंटीजर. तो अब जब आप इसको टाइपकास्ट करोगे इंटीजर में तब वो 0 देगा. आर यू गेटिंग इट? हाँ, राउंड फंक्शन विल राउंड इट टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू. ठीक है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंस ऑल ऑफ दीज, देखो मील कॉस्ट जो है वो डबल वैल्यू है, मतलब वो डेसिमल होगा उसके अंदर. ठीक है, फिर ये सारी चीजें भी डेसिमल, मतलब इट विल हैव डेसिमल वैल्यूज. तो जब ये पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट होके आएगा तो उसमें डेसिमल पॉइंट्स होंगे, इसलिए राउंड भी क्या करेगा, उसको डेसिमल पॉइंट्स में ही रिटर्न करेगा. एंड देयरफॉर विल हैव टू टाइपकास्ट इट एज एन इंटीजर. ठीक है, उसको स्टोर किया मैंने टोटल में. नाउ आई जस्ट हैव टू प्रिंट द टोटल. सो आई विल से printf %d and I'll print the total. Let us run the code. ठीक है, the test cases are getting passed. We'll submit the code. 0 1 2 3 सारे टेस्ट केसेस पास. ठीक है, सो बहुत सारी चीजें सीखी हैं. वी लर्न अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, relational operators, logical operators. Bitwise we'll talk about them later. We also talked about ternary operator. We also talked about printf कि वो क्या रिटर्न करता है. It simply returns the number of characters that you have printed on the screen. Then round function, it simply rounds it to the nearest integer. 0.5 से बड़ा हुआ तो next integer, 0.5 से कम हुआ तो previous integer. Then we also learned about typecasting. Did you get all of this? Please answer in the chat. Can we do it without a round function? Yes, round function के बिना कर सकते हो, but उसके लिए what you'll have to do, you'll have to write it manually. If else करके करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड फंक्शन खुद क्या कर रहा है, राउंड फंक्शन के अंदर भी if else लिखा हुआ है ना. मतलब what is round function doing? It will compare the value. 0.5 से कम है तो वो प्रीवियस इंटीजर दे रहा है, 0.5 से बड़ा है तो नेक्स्ट इंटीजर दे रहा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो अगर आप राउंड फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको डेलिबरेटली if else करके लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए इट वाज बेटर दैट वी यूज्ड अ प्रीडिफाइंड फंक्शन. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन क्लियर है सबको जो सॉल्व किया आज, एंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड देम. ठीक है, ओके. सो वील मीट अगेन टुमारो फॉर डे 3.